So, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, and verse number 43. One second. Sri Krishna Krishna Sakha Vrishnaya Vrishnayasya Bhavanidhruk Rajanya गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. O Krishna, O friend of Arjuna, O chief amongst the descendants of Vrishni, you are the destroyer of the political parties which are disturbing elements on this earth. Your prowess never deteriorates. You are the proprietor of the transcendental abode, and you descend to relieve the distress of the cows, the brahmanas, and the devotees. You possess all mystic powers, and you are the preceptor of the entire universe. You are the Almighty God, and I offer you my respectful obeisances. Purport. A summary of the Supreme Lord Sri Krishna is made herein by Srimati Kunti Devi. The Almighty Lord has his eternal transcendental abode where he is engaged in keeping Surabhi cows. He is served by hundreds and thousands of goodness of fortune, goddesses of fortune. He descends to the material world to reclaim his devotees and to annihilate the disturbing elements in group of political parties and kings who are supposed to be in charge of administration work. He creates, maintains, and annihilates by his multiple unlimited energies, and still he is always full with prowess and does not deteriorate in potency. The cows, the brahmanas, and the devotees of the Lord are all objects of his special attention because they are very important factors for the general welfare of living beings. So, Srimati Kunti Devi has summarized why Krishna appears, what all the things which are dear to Krishna, and first we understand that Krishna appeared because बहुत बर्डन बढ़ गया था. पाप करने वाले जो राजाओं से इस संसार का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो भगवान को वो बोझ कम करना था. एंड भगवान की जो शक्ति है वो कभी भी कम नहीं होती है. तो भगवान को इसीलिए कहते हैं कि एक ईशोपनिषद का श्लोक है जो कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. यानी पूर्ण है भगवान, एंड वो पूर्ण में से अगर पूर्ण को निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण बचता है. एंड एंड इवन द भगवान तो पूर्ण है ही, लेकिन भगवान के साथ साथ भगवान की क्रिएशन भी पूर्ण है. एवरीथिंग, इवन मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो पूर्ण, इट इज सेड देन. अगर आप ईशोपनिषद पढ़ेंगे द फर्स्ट श्लोका, तो वहां पर ये आपको पढ़ने को मिलेगा. इट्स वेरी, तो प्रभुपाद ने वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया है हाउ एवरीथिंग इज पूर्ण, क्योंकि कृष्ण से जो निकला है सब पूर्ण है. इवन वी एज अ सोल्स आर ऑल्सो पूर्ण. सो कृष्णा, बट स्पेशल द पॉइंट इज द कृष्ण, अगर पूर्ण में से भी कृष्ण पूर्ण को निकाल दें फिर भी कृष्ण कृष्ण पूर्ण बचते हैं, तो उनका जो शक्ति है वो कभी समाप्त नहीं होता. और आप गोलोक वृंदावन धाम के स्वामी हैं. आप यहाँ पर गौ ब्राह्मण और भक्तों के विशेष रूप से आप इनके दुख को समाप्त करने के लिए आते हैं, एंड भगवान योगेश्वर कहे जाते हैं. तो ये पूरे पूरे ब्रह्मांड के जो भी ब्रह्मांड है उनसे पहले व्यक्ति हैं, गुरु हैं, ओ प्रिसेप्टर भगवान अखिल गुरु भगवान नमस्ते. योगेश्वरा अखिल गुरु, अखिल गुरु मतलब सभी के गुरु हैं. कृष्णम वंदे जगत गुरु. कृष्ण जो है जगत गुरु है. तो मैं आपको प्रणाम करते हूँ. तो ये दिस समरी जो है श्रीमती कुंती देवी ने यहाँ पर बताई है. यस, नेक्स्ट.
सुमित प्रभु पढ़ेंगे। 1.8.44 सूत उवाच पृथ ये तथं कल्पदै परिणुता किलोदय मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहो यत्रीव मायया. यन्निव, हाँ। Translation. Suta Goswami said, the Lord, thus hearing the prayers of Kunti Devi, composed in choice words for his glorification, mildly smiled. That smile was as enchanting as his mystic power. Anything that is enchanting in the world is said to be representation of the Lord. The conditioned souls who are engaged in trying to lord it over the material world are also enchanted by his mystic powers. But his devotees are enchanted in a different way by the glories of the Lord, and his merciful blessings are upon them. His energy is displayed in different ways. As electrical energy works in manifold capacities, Srimati Kunti Devi has prayed to the Lord just to enunci- enunciate a fragment of his glories. All his devotees worship him in that way by chosen words, and therefore the Lord is known as Uttama Shloka. No amount of chosen words is sufficient to enumerate the Lord's glory, and yet he is satisfied by such prayers as the Father is satisfied, even by the broken linguistic attempts of the growing child. The word Maya is used both in the sense of delusion and mercy. Herein the word Maya is used in the sense of Lord's mercy upon Kunti Devi. तो भगवान पूर्ण है, और अ, भगवान को समझना असंभव है, हमारी बुद्धि के लिए असंभव है। करेक्ट। क्योंकि हम उनकी सृष्टि के एक बहुत माइन्यूट हिस्सा है, उनकी सृष्टि के बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो हम एक छोटा सा हिस्सा होके हम अपने क्रिएटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बुद्धि से। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि के माध्यम से हमारे सृष्टिकर्ता को हम पूर्ण रूप से समझ पाएंगे, तो ये हमारी मूर्खता है। विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड। इवन अगर आप कितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़ लो, सारे वेद रट लो, सब कुछ कर लो, इसके बावजूद आप भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि की जो सीमित क्षमता है, उसके अनुसार ही हम समझ पाएंगे। तो हम भगवान को कितना समझ पाएंगे और कितना ग्लोरीफाई कर पाएंगे। तो भगवान के लिए तो इट इज जस्ट लाइक एक जैसे श्रेयान है सुमित प्रभु को, वो अगर वो प्रभु जी से कुछ कहता है तो प्रभु जी को बड़ा अच्छा, हम लोगों से कुछ बोलता है तो हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग उसी से प्रसन्न हो जाते हैं उसकी आवाज सुन के। तो कोई छोटा सा बच्चा जब बोलता है, और आपका बच्चा स्पेशली अगर बोलेगा, तो आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। एंड अगर आपको वो जैसे पापा पापा कह के आपका बच्चा आपसे लिपट जाता है, तो यू फील वेरी वेरी मच लव्ड, ऑल दो यू नो कि उसकी बुद्धि बहुत कम है, लेकिन यू अंडरस्टैंड दैट दिस चाइल्ड लव्स मी एंड ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मी। So why children are so loving? Because we feel that they are totally dependent on me, है ना। तो आपको हमेशा ये लगता है कि मुझे इनकी केयर करनी है, इनकी रक्षा करनी है, इनको मुझे इनकी तबीयत खराब होती है तो आप परेशान हो जाते हैं, है ना। और इनकी छोटी सी सफलताओं को भी हम बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड इसकी क्षमता कितनी है। फिर भी वो कितना करने का, अभी छोटा सा बच्चा है कोई, और वो अगर अपने फादर के लिए एक फूल तोड़ के ले आता है एंड दे देता है, या मदर के लिए, मदर को कितना अच्छा लगता है, इतना छोटा सा बच्चा, इसको कितने किसने बुद्धि दी कि मुझे फूल दे, है ना। सो फादर फील्स एंड मदर फील्स वेरी मच affectionate towards their child. Similarly, Krishna feels very affectionate towards all of us if we try our best. Although our limitations are innumerable limitations, हमारी क्षमताएं बहुत सीमित है, लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम कोशिश करते हैं। तो हम जब भी कुछ, तो इसलिए और हमारे आचार्यों ने इसीलिए इतनी प्रार्थनाएं लिखी हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लग पाए कि मुझे प्रार्थना कैसे करनी है। जैसे कुंती देवी की प्रार्थना अभी हमने पढ़ी, अभी जस्ट खत्म हुई,
तो उसके बाद हमें समझ में आया, राइट, कि हमें किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी है। अगर हम बैठ के प्रार्थना करेंगे तो अब हमें आइडिया है कि हमारे गुरुवर्गों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्ववर्ती भक्तों ने जिस प्रकार से, वरिष्ठों ने जिस प्रकार से भगवान से प्रार्थना की है, उसी लाइन में हमें प्रार्थना करनी है। और भागवतम इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट है कि आपको किसी भी प्रकार की भौतिक प्रार्थनाएं नहीं करनी है। कुंती देवी ने भौतिक प्रार्थना कहीं नहीं करी, भागवतम अमल पुराण है। यहां पर भगवान से किसी भी भौतिक इच्छा की चाह व्यक्त नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के भौतिक संसाधन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नहीं बताएंगे। बाकी आप जगह अलग अलग शास्त्र पढ़ेंगे, आपको सब जगह कुछ ना कुछ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान से मांगने वाली प्रार्थनाएं मिलेंगी। इसीलिए आप देखिए, जिन जो भजन है, हमारे आचार्यों ने, जो वैष्णव आचार्यों ने जो भजन लिखे हैं, अमितो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, कि मैं तो कंगाल हूं, कृष्ण कृष्ण बोल के आपके पीछे पीछे भाग रहा हूं। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, পড়েছি তোমার ঘাড়ে, তুমি তো ঠাকুর, তোমার কুকুর बोलिया जान हूँ मोरे। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है मैंने। पोरेची तुम्हारे घारे, आपके दरवाजे पे पड़ा हुआ हूँ। तुम ही तो ठाकुर, तुम्हारे कुकुर, आप मेरे ठाकुर, मेरे स्वामी, मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ। कैन यू इमेजिन somebody praying like that? आपने कभी भजन कभी सुने हैं बाहर, जो जो अन्य लोगों ने लिखे हैं? आपको इस लेवल की दीनता, इस लेवल की विनम्रता और इस लेवल का प्रेम आपको उसमें नहीं दिखाई देगा। जो हमारे वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, उनके भजन जब आप पढ़ेंगे ना, आपका हृदय द्रवित हो जाएगा कि वो किस स्तर तक जाकर, कितने नीचे जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ भी मन में अहंकार नहीं है। बाहर सुनिए, कौन सा है कि व्हाट इज दैट, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर देवा, ओ देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। सो यू सी द लेवल, कि जो यहाँ पे कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति ऐसे लिख रहा है कि मैं सबसे महान हूं, आपके भक्तों में सबसे महान हूं, आप सबसे महान हो, मैं आपका भक्त, भक्तों में सबसे महान मैं हूं। तो दिस इज कॉल्ड रसाभास। रसाभास का मतलब समझ रहे हैं? रसाभास होता है जब व्यक्ति दो रसों को मिक्स कर देता है। अभी दो रस, अलग अलग रस हैं, और दोनों रसों को जहां पर भी आपको समझ में आए वो आप समझ जाएंगे, ये वैष्णव प्रार्थना नहीं है। वैष्णव प्रार्थना कभी भी कंफ्यूज नहीं होती रस को लेकर। हमारा रस दास्य रस है। हमारा रस दास्य रस में ही आपको सारी प्रार्थनाएं जनरली दास्य रस में मिलेंगी। and very very deep prayers are also there in further rasas, but दास भाव सब में कॉमन है। so we have to understand how we have to pray, and through the words of our acharyas, and that's why we should recite the prayers of our acharyas time to time। भजन गाने चाहिए अपने आचार्यों के, उनका मीनिंग समझना चाहिए, क्योंकि जब आप समझेंगे तो आपके अंदर भी वो दीनता, और वो समझ में आएगा कि मुझे एक्चुअली क्या अचीव करना है। इसी से हमारी भक्ति में प्रगति हो सकती है। जब हम ये समझेंगे कि मुझे अचीव करना क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया कि अभी क्या है। ठीक है, सब तो ज्ञान प्राप्त हो गया, आप भागवतम पूरा पढ़ लेंगे, आपको समझ में आएगा कि अभी तो सब ज्ञान प्राप्त, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त हो जाना और उस ज्ञान के कारण तो उल्टा अहंकार हो जाता है। तो वो हमें क्या प्राप्त करना है, वो हमारे आचार्यों ने अपने उदाहरण से बताया है। हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ गोपीज बनना है। गोपी भरत और पद कमले और दास दास दासानुदास, गोपियों के दासों के दासों के दासों के दास, यानी कितने दास, जितने दास लगा सकें बीच में, उन सबके दास।
तो ये बहुत ही exalted पोजीशन है. दो इट लुक्स इन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, इट लुक्स लाइक it's very very lower position, and but that is the most desirable position for a Vaishnava. Okay, so we'll read from here tomorrow. Hare Krishna. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय. शिल प्रभुपाद की जय.